Nice to meet you once again, my friends. Tamil Nadu, my favorite one, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin, actually going all the way in a position of the BJP and every actions taken by the BJP at the center as well as other, actions of the states governments of BJP, but particularly center's policy run by the BJP is being opposed by uh, in an effective way by Mr. M.K. Stalin, even though he is you know leading way ahead than the Rahul Gandhi. Okay, his voice is definitely being heard. He is opposing every uh, reforms done by the BJP, saying that BJP is a different kind of party. Hmm? Want to have a power into the center and want to run the authoritarian kind of regime. He's accusing all the steps and very recently, the UGC, undergraduate uh, admissions in which the central university runs actually, Union Grants Commission regulations very recently issued a draft regulation. He is saying that all the non BJP uh, state governments must have to pass a resolution in their assembly and oppose tooth and nails. Okay, actions taken by the center. He is also saying that he is going to oppose many other policies as well. Okay, he is at the loggerhead with even governor too, because governor is also appointed by the center. Okay, so he wrote many, uh, chief minister's letter. Please, Mr. Chief Minister, listen to, know, and take care of, and have to oppose the BJP's actions. Okay, because BJP is, uh, taking the powers from the state. Okay, and centrality of the power. Okay, he's saying that, accusing that, and he wrote the letter to Delhi Chief Minister and Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Punjab, Telangana, West Bengal, all the non-BJP states governments who are running there. He wrote the letter and said that UGC must have to be opposed and UCC as well. Okay, UCC means Uniform Civil Code, which is very much under the discussion. Even though Mr. Uttarakhand Chief Minister saying that yes, within a month, that means end of this month, means February or very early start of January, sorry, February, they were going to adopt because their cabinet accepted the UCC Uniform Civil Code. So they are going to implement that because just 2.5 years ago he was actually made the draft and passed them from their assembly. Right now they are going to implement that in the February month, very early of February 2025. I think this is would be the Uttarakhand would be the first state to going to adopt the UCC. Okay, so Uniform Civil Code. So let's see. But what Mr. Stalin said that I'm reading for you. We believe that he's saying that we believe that many provisions in the draft regulations may pose serious challenges to the integrity, autonomy, integrity, autonomy, and inclusive development of state universities. We request the Ministers of Education to withdraw the draft and review the concerns. Okay.
So definitely he wrote a letter to Dharmendra Pradhan, Minister of Education at the center, and he wrote also to all the state non BJP governing states. So he's saying also that you must have to step up and oppose as much as you can uh, to UCC as well. Okay. If I read for you page number 5 or 6. Use GC draft regulations as serious constitutional issues. ये एडिटोरियल है, मैं इसको कंप्लीटली पढ़ने के बाद ही आपके साथ बात कर पाऊंगा कि इसका एसेंस क्या है। दिस दैट इधर उधर बोलने से मामला बनता नहीं है और टाइम बेवजह नुकसान होता है। सो थैंक यू वेरी मच। ये है अभी क्रक्स ऑफ मैटर। और नॉन बीजेपी स्टेट्स तो काफी यार अपोज करते हैं, है ना, काफी अपोज करते हैं। और मुझे भी अपोजिशन से कोई मुझे कंप्लेन नहीं है, करना चाहिए, है ना। और डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन फॉर सेक ऑफ अपोजिंग योर एक्शंस, है ना, हम आपको चलन देंगे जिस तरह पहले बीजेपी करते थे, कांग्रेस को चलन देते थे। जब आधार आन बीजेपी कांग्रेस लाना चाहती थी तो बीजेपी उस पे टांग अड़ाई, नहीं आने नहीं देंगे। बीजेपी पैसा रुपया फॉल करता था, कांग्रेस को इतना एक्यूज किया, डांटा, गाली दिया, नहीं सब कुछ किया। आज रुपया गिर रहा है, सब लोग चुप है ना। पहले जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लोग ले आते थे, बीजेपी टांग अड़ा करके, उलट पलट करके, तोड़ मोड़ करके, नहीं सारा तंत्र कर देंगे, मार देंगे, नहीं होने नहीं देंगे इसको, देश बिक जाएगा, फलाने दुकान, नेशनल इंटीग्रिटी, सारा क्वेश्चन आज सब कुछ वैलिड है ना। तो ये सारे इश्यूज हैं जो देखने की बात है। तो पहले जो चीजें गलत थी वो ये पॉलिटिशियन आई थिंक करते हैं, है ना, टू बी रेलिवेंट। इसमें हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो ये सारे इश्यूज हैं। आज काफी आर्टिकल निकला हुआ है यूजीसी के लिए रेगुलेशंस, जो अभी सेंट्रल ने ड्राफ्ट पॉलिसी यूज की। मैं लिटिल बिट बता देता हूँ जो न्यूज मैंने अभी हिस्ट्री मतलब 4-6 दिनों में पढ़ी है। उसमें ये है कि गवर्नर को अथॉरिटी दी जाएगी, और गवर्नर से ये जो चांसलर होता है यूनिवर्सिटी, क्योंकि वाइस जो प्रेसिडेंट होता है वो चांसलर होता है, या इवन द गवर्नर भी चांसलर होता है। वाइस प्रेसिडेंट मीन्स वही स्टेट के अंदर जो गवर्नर हेड करता है वही है उसको चांसलर। ठीक है, यूनिवर्सिटीज का ऐसा रूल है। तो ये करीब मुझे याद आता है 3-4 सालों से इस बार डिबेट चल रहा है कि गवर्नर किसी किसी स्टेट में है, किसी किसी स्टेट में नहीं है। तमिलनाडु ने इसको हटाया, है ना, जब आए मेडिकल फील्ड के जो होते हैं उसमें एंट्रेंस एग्जाम नीट वगैरह के लिए भी बवाल चल गया था, नहीं, तो उसमें भी अपोजिशन मिस्टर स्टालिन और बाकी लीडर्स ने किया था कि एडमिशन यहाँ पे स्टेट लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके बिहाफ पर दिया जाए। सेंटर से स्टेट्स जो एग्जाम सेंट्रल एग्जाम होता है उससे सीट पे वो बहुत सारे इश्यूज उन्होंने चीजों को कहा। देयर विल बी सम लॉजिक, देयर विल बी सम समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। और क्योंकि ये सेंट्रल सिस्टम होने से फायदा ये है कि एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ठीक होता है। स्टेट को हम जो भी एजुकेशन सिस्टम देते हैं वो सब अपने हिसाब से कर लेते हैं, नहीं उसमें वो एफिशिएंसी वो चीज मुझे तो नहीं नजर आती। मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ, यहाँ तो हर चीज करप्ट है ना। तो यहाँ की एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट है, जबकि एनसीईआरटी अभी जो ला दिया गया है इससे काफी एक स्टैंडर्ड मिल गया है एजुकेशन के लिए। लेकिन अभी फिर भी जहाँ पे स्टेट लेवल के अफेयर्स हैं वहाँ पे चीजें गड़बड़ है। वो डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो चाहिए रिक्वायर्ड है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, वो चीज नहीं हो पाती है स्टेट लेवल पे, है ना, बिकॉज देयर इज हायरार्की ओके इन द सिस्टम, अकॉर्डिंगली चीजें होती है। तो आप इसको अंडरस्टैंड करें, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हम कहाँ से दे सकते हैं, कितना बेहतरीन हम चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं जो मॉडर्न युग की ज़रूरत है, उसके हिसाब से एजुकेशन भी क्राफ्ट करना चाहिए।
और टफ कंपटीशन में होना भी बुरा नहीं है। स्टेट लेवल पे कंपटीशन करोगे तो डिफरेंट होगा, नेशनल लेवल पे करोगे तो डिफरेंट होगा, नहीं। और उसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम भी है, कुछ सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ स्टेट फंडेड हैं, नहीं। जो सेंट्रल फंडेड हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो गवर्न करती हैं उनके रेगुलेशंस डिफरेंट होने चाहिए, नहीं। तो मैं समझता हूँ उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसमें जो आईआईटीज की जो एजुकेशन है कंपेयर टू स्टेट जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है उनमें डिफरेंस नहीं है, आपको नहीं लगता, है ना? तो क्वालिटी ऑफ पीपल भी अलग है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अलग है, नहीं। तो नेशनल लेवल पर जब चीजें होती हैं, टफ कंपटीशन होता है, टफ स्टूडेंट भी होते हैं, नहीं। उसका एक रेगुलेशन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होता है, नहीं, प्रिपरेशन डिफरेंट चाहिए। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि अंडरस्टैंड करनी चाहिए रादर देन कि हम एक जिद पर आ जाए, है ना? मैं किसी को टीचिंग नहीं दे रहा, मैं इस तरह समझता हूँ। लेकिन ये दैट डजंट मीन दैट कि स्टेट अपना कुछ भी ना करे, उसको भी चाहिए कि वो अपना लेवल ऑफ एजुकेशन डिफरेंस क्यों है, इस पर भी डिबेट हो सकता है ना। इक्वालिटी मीन्स चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, सभी बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाकी चीजें भी ठीक होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है ना। हम्म, शायद वो उस तरीके के स्टूडेंट जो उनमें वो माइंड का नहीं, इंटेलेक्चुअल एसेट नहीं पाया जाता। तो बीच सारी चीजें हैं, बाकी देखने की वाली बात है, आप खुद समझदार हैं। लेकिन हर बात पे अपोज करना, किसी बात पर भी नहीं आना, चाहे वो सही है गलत है ना? ये नेशन को पीछे ले जाता है मेरे हिसाब से, है ना? अगर आधार की जो पॉलिसी है 25 साल पहले आ गई होती, जब कांग्रेस चाहती थी फलाना पॉलिसी, जो बहुत सारी पॉलिसीज है, ये हमारा वुमेन्स रिजर्वेशन की पॉलिसी जो बीजेपी ने अभी रिजर्वेशन के 33% दिया है, ये कांग्रेस ला रही थी 70-80 के दशक में, है ना? लेकिन ये इन्होंने लाने नहीं दिया, बोले मर जाएंगे, जाने लाने नहीं देंगे। अभी खुद ला करके बोले हैं कि 2029 में हम करेंगे, क्योंकि एक बार और इलेक्शन का वोट मिल जाए वुमेन्स का, है ना? उसको उन्होंने पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर रख रखा है। अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट सिग्नेचर हो गई, लेकिन इम्प्लीमेंट होगा 2029 में, जब इलेक्शन एक बार फिर से भी उसका वोट ले लेंगे बीजेपी वाले, तब जाके करेंगे। तो ये भी बहुत क्लेवर टैक्टिशियन है, शायद पॉलिटिशियन इस तरह करते ही है। आई डोंट नो उनके क्या विचार हैं, लेकिन ये बात है कि करप्ट पॉलिटिशियन हमारे यहाँ है ना? उनका अपना एथिकल मोरल प्रिंसिपल नहीं है ना? ये बात मानना पड़ेगा। वो अपने और यही नहीं, दुनिया में जहाँ पे भी है, अभी मैं मिस्टर ट्रम्प को देख रहा हूँ, अपने फैमिली मेंबर, बच्चे बच्चियां सबको ले जाकर के व्हाइट हाउस में रोक दिया। मे बी कि आपको परमिशिबल हो, लेकिन वो आप प्रेसिडेंट का ऑफिस है और प्रेसिडेंट का हाउस भी है ना? तो मैं भी हाउस में रखा जा सकता हूँ, अपनी फैमिली को डिफेंस के लिए, बाकी सिक्योरिटी के लिए रखा जा सकता है ना? और लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि पब्लिक ऑफिस में आपको ऑफिस मिली हुई तो उसको में आप ही काम करें, आपका बच्चा भी उसमें जा रहा है, नहीं आप, आजकल तो ये सब एक फैमिली ड्रामा भी हो गया, कहीं जाते हैं तो अपने फैमिली को लेके जाते हैं, नहीं। मैं इसको नहीं उचित समझता। आपको जो अथॉरिटी मिली हुई उसको आप एक्सरसाइज करें, बाकी सबको घर छोड़ दें, है ना? तो मैं इस तरह मेरा विचार है, हो सकता है कि चीजें ठीक है या नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह हो, है ना? आपको ऑफिस मिला हुआ है तो उसकी डिग्निटी और सैंक्टिटी को आप ठीक ठाक रखें। सभी को ले आके व्हाइट हाउस में कुदा रहे हैं, नहीं, बच्चे बच्चियां, वो लड़की है अभी, ट्रम्प और इवांका क्या नाम है उसका, उसका हस्बैंड, उसकी ये उसकी वो, नहीं, सब घूम रहे, सभी प्रेसिडेंट बन गए हैं, नहीं। बच्चे बच्चियां सब, नहीं, फॉरेन अफेयर संभाल रहे हैं, ऐसे लग रहा है फैमिली का एक अपना सिस्टम चल रहा है। आई डोंट डोंट यू नो, इससे चीजें डिग्रेड होती हैं। कुछ डिफरेंट व्यूज आता है और चीजें ठीक नहीं होती। हर कोई किसी को पार्डन कर देता है, बाइडेन जा रहा था तो हजारों लोगों को माफ कर दिया, ठीक है। अभी ये आए हैं तो जो मिस्टर इन्होंने वो 6 जनवरी को, है ना, 2021 में जो ड्रामा इन्होंने कराया था, उसको इन्होंने रैप अप कर दिया, सबको माफी दे दी, चलो ठीक है जाओ सब माफ, 1500 लोगों को सजाए हुए थे, सब सब माफ, है ना? तो फिर इस तरह से चीजें चलेंगी तो फिर सिस्टम कहाँ चलेगा, गॉड नोस। लेकिन आजकल तो ऐसे चल रहा है, ये चाहे यहाँ है चाहे वहाँ है। थैंक यू वेरी मच।